hosted by Sohail Tanveer, who is a great player as well. So he will be coming in shortly. I will do their introduction because they are in the house now. A very good evening. How are we all? The right side is really well, I can tell. How's everyone on this side? Aap sab theek hain? Perfect. I'm Muniba Sheikh, and I have the honor and the pleasure of being your host this evening. Sabse pehle to I'd like to introduce myself. मैं आपकी host हूँ आज. I am the brand ambassador for the Canadian Kings Cricket Club, as well as their official MC. Thank you very much. This evening I'd like to welcome everyone on behalf of Canadian Kings Cricket Club, ke Iftikhar Khan Sahab, and as well as Mr. Wasim Ahmed, who is the CEO, owner of Black Ash Sports. They both have made this event possible, so I think they deserve a round of applause, both of them, for putting it up with us. So it is hosted by Sohail Tanveer, who is a great player as well. So he will be coming in shortly. I will do their introduction because they are in the house now. They are here. Sohail Tanveer is here with us, the host today. He's a former Pakistan fast bowler known for his unorthodox action and match-winning performances. He played internationally from 2007 to 2017 and was part of Pakistan's T20 World Cup winning squad. 2023 में he was appointed head of the PCB, जो Pakistan Chairman Board है, cricket का, तो Junior Selection Committee, as well as he's also the captain for my team, the Canadian Kings Cricket Club. So that's his lovely introduction. उसके अलावा बहुत अच्छे इंसान हैं. Let's give a round of applause for Mr. Sohail Tanveer. So we know why we're here, right? It's a meet and greet with Shoaib Akhtar. So, Shoaib Akhtar, being born August 13, 1975 in Rawalpindi, Pakistan, is a former Pakistani fast bowler, famously known as the Rawalpindi Express. उनको सब इस नाम से जानते हैं. अच्छा, इनकी आवाज़ आप लोगों की बाहर तक आनी चाहिए उनको. Perfect, well done. Renowned for his record-breaking speed of 161.3 kilometers an hour. इस पे आपको solid ticket मिल सकता है अगर आप यहाँ पर गाड़ी चलाएं और demerit points भी जा सकते हैं. So that's how fast he bowls. He remains one of cricket's fastest bowlers ever, despite his injuries and controversies. His fierce pace and passion made him a global icon. After retiring in 2001, Shoaib Akhtar became a commentator and media personality. Let's put your hands together for Mr. Shoaib Akhtar! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. A very good evening. How are we all?
The right side is really well, I can tell. How's everyone on this side? Aap sab theek hain? Perfect. I'm Muniba Sheikh, and I have the honor and the pleasure of being your host this evening. मैं also brand ambassador हूँ for the Canadian Kings Cricket Club. Okay, we're going to take a moment here and please have everyone sit down. All I hear is people talking. Please, एक अच्छा लगेगा ना कि सब लोग सुन लें अच्छे से. Can we get everyone to settle in? We've had enough time. And I'm sure we want to start on time because सब लोगों को खाना भी time से मिले, which is the best part, right? Perfect. All right. अब आप सबको आवाज आ रही है मेरी? दूर दूर तक आ रही है? Perfect. Thank you. I'm going to start again so everyone knows what I said. तो सबसे पहले तो I'd like to introduce myself. मैं आपकी host हूँ आज. I am the brand ambassador for the Canadian Kings Cricket Club as well as their official MC. Thank you very much. And this evening I'd like to welcome everyone on behalf of Canadian Kings Cricket Club, के इफ्तिखार खान साहब, and as well as Mr. Wasim Ahmed, who is the CEO, owner of Black Ash Sports. They both have made this event possible, so I think they deserve a round of applause, both of them, for putting it up with us. So it is hosted by Sohail Tanveer, who is a great player as well. So he will be coming in shortly. I will do their introduction because they are in the house now. They are here. Quickly, I will go over the house rules because that's very important. तो सबसे पहले तो ये है कि जब discussion हो रही होगी तो बहुत अच्छा लगेगा कि unnecessary बातें नहीं हों. अगर आपको बातें करनी है तो आप बाहर जा सकते हैं, because we don't want to really experience for the other people that are here, respectfully. The other thing is that we do have official photographers, videographers. We do have Omar Rashid here with us from Capture Craze. So this road right over here, the red carpet, the photographers and videographers will be there, and I request them respectfully if they can. उसी लाल पट्टी पे अगर आप रहें तो अच्छा होगा, किसी का व्यू नहीं ब्लॉक होगा. As well as everybody else that wants to take pictures and videos, they're more than welcome to do so. But let's try to do it in a way where we're not coming up here. Let's try not to make selfies. Let's not try to block the view for the other people. We'd like everyone to have a comfortable, seamless experience. और वो अच्छा भी नहीं लगता कि आपको बोला जाए कि आप रास्ते से हट जाएं. So please do it. Everyone is going to get the opportunity to take pictures. Everyone here will have the opportunity. So let's keep it for then rather than before. Perfect. All right, so we're going to start off with the introduction for both. Sohail Tanveer is here with us. The host today is a former Pakistan fast bowler known for his unorthodox action and match-winning performances. He played internationally from 2007 to 2017 and was part of Pakistan's T20 World Cup winning squad. 2023 में he was appointed head of the PCB, जो Pakistan Chairman Board है cricket का, तो Junior Selection Committee, as well as he's also the captain for my team, the Canadian Kings Cricket Club. So that's his lovely introduction. उसके अलावा बहुत अच्छे इंसान हैं. Let's give a round of applause for Mr. Sohail Tanveer. Welcome. How are you? Nice to see you off the field today. All right. Oh, I have a
for you. Hold on. पहले पहले ही से हमने कहा पहले ही जाके आपको तोहफा देना. All right, now's the moment we were all waiting for. So we know why we're here, right? It's a meet and greet with Shoaib Akhtar. So, Shoaib Akhtar, being born August 13, 1975 in Rawalpindi, Pakistan, is a former Pakistani fast bowler, famously known as the Rawalpindi Express. उनको सब इस नाम से जानते हैं. अच्छा, इनकी आवाज़ आप लोगों की बाहर तक आनी चाहिए उनको. Perfect, well done. Renowned for his record-breaking speed of 161.3 kilometers an hour. इस पे आपको solid ticket मिल सकता है अगर आप यहाँ पर गाड़ी चलाएं और demerit points भी जा सकते हैं. So that's how fast he bowls. He remains one of cricket's fastest bowlers ever, despite his injuries and controversies. His fierce pace and passion made him a global icon. After retiring in 2001, Shoaib Akhtar became a commentator and media personality. Let's put your hands together for Mr. Shoaib Akhtar! Welcome, Mr. Shoaib Akhtar. Khushamdeed. We will be starting with the Tilawat-e-Quran. I would like to request Hafiz on Bilal to please come up on stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. If everyone can rise for the Pakistani national anthem. Shall
organizers, so primarily the CEO for the Canadian Kings Cricket Club, Mr. Iftikhar Khan. थैंक यू मुनीबा। मैं क्विक सबका शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, और स्पेशली शुएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, शुएब भाई आपका, और हमारे जो स्पॉन्सर्स यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। राहत बैकिंग से अकबर भाई, ऑन बस, गलागोस, प्रोग्रेस, रेहाब क्लिनिक, ग्रोइंग स्माइल, एंड इसके साथ स्नोबल ऑफिस, CCMC अक्षय पांडे, CSCA असद खान, एंड बास्केट बॉल, एंड हमारी वुमेन कैनेडियन किंग्स की टीम एंड मेंस टीम जो है हमारी क्रिकेट की वो यहाँ पे मौजूद है, और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में जो टीम जा रही है वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबका शुक्रिया, और जितने भी यहाँ पे गेस्ट, मीडिया, नदीम भाई, लताफ़ा भाई, अंजुम भाई, शाफरीदी साहब, और भी जितने लोग बैठे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे जो इस इवेंट के पार्टनर हैं मेरे साथ ब्लैक ऐश स्पोर्ट्स, वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरा साथ दिया, सो थैंक यू। Thank you very much. I'd like to call upon Aisha Ahmed, who is the director for Black Ash Sports. If you can come up and say a few words. My name is Aisha Ahmed. I am the director of Black Ash Sports, Toronto's leading cricket and custom sportswear company. It is an honor to have two cricket legends with us tonight, Shoaib Akhtar and Sohail Tanvir. Their contributions to the game are legendary, and we're lucky to have them here tonight. A special thank you to Iftikhar Khan, founder of Canadian Kings Cricket Club, for making this event possible. Your efforts do not go unnoticed, so we thank you. And yeah, finally, I just want to thank everyone for showing up tonight. You all look amazing. So let's enjoy such an exciting evening and celebrate the game we all love. Thank you. To be here, normally हम बैठे होते हैं इकट्ठे as analyst, but आज मेरा रोल थोड़ा different है, so लेकिन बहुत सा करूँगा आपको। So to start with, मैं पहले तो सोच रहा था कि आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगा, लेकिन since the gentleman started with that question जो आपके मेरे ख्याल में, if somebody asked me what is defining moment, I think that was those two deliveries which you bowled against Sachin and Rahul Dravid. I think those were the deliveries. So I would want you to talk us through. I mean, क्योंकि वो time था, obviously मेरे ख्याल में काफी time के बाद पाकिस्तान toured India, 1999 test, और आप मैं चाहूँगा कि वो दो जो डिलीवरीज थी उनके बारे में talk us through कि what was in your mind, उससे पहले और उसके बाद क्या चेंज हुआ आपके कैरियर में? First of all, thank you very much for having me, जी, all of you for coming this way, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों से जब भी मिलता हूँ बहुत खुशी होती है। अपने लोगों को जब भी देखता हूँ, they are thriving, they are working hard, they are making sure they are making a livelihood in a legitimate way and contributing in terms of to the Canadian economy. Thank you very much for putting up a great reputation. Secondly, Sohail is one of the finest all-rounder that we ever had. I think to begin with, the story, a young lad from Pindi, which is not me, Sohail Tanvir and Muhammad Amir. I mean, they were coming forward, or so, तो पिंडी से जो टैलेंट आया है, now? Okay, just turn it off. Yeah, it's better. अच्छा, तो पिंडी से जो भी लोग आए हैं, तो ख्याल ये किया जाता था बैक इन द डेज कि पिंडी से शायद क्रिकेटर्स नहीं बन पाते, पिंडी से। तो ये मिथ मैं तोड़ने में कामयाब हुआ अल्लाह की मदद से। ऑब्वियसली बंदा सारी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह की मर्जी होती है और किस्मत होती है बंदे की, तो बंदा ऊपर आता है। हालांकि हमारे साथ के कई हज़ार क्रिकेटर बेचारे नहीं पहुंच पाए जहां पे हम खड़े। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बॉस चाहें
तो काम बनता है। तो सोहेल, मोहम्मद आमिर, फिर अज्जू की पिंडी गई है, यासिर अरफात, so these people came along. So I probably the beacon of the light which is comes to to know कि यार कि हम खेल सकते हैं, पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। बट पाकिस्तान पहुंच गए, इंडिया चले गए। अब पहले एक टेस्ट मैच में समझ ही नहीं आ रही थी क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। जब हम इंडिया पहुंचे तो मुझे सलीम मलिक ने कहा, मलिक साहब ने, कि तुम्हें ये तीसरा टेस्ट मैच खिलाएंगे, तुझे पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खिलाएंगे। तो मैंने कहा मलिक साहब तो मैं क्या इंडिया छोले भटूरे तो नहीं खाने आया। तो उन्होंने कहा वेट कर पेशेंटली, क्योंकि तेरी पेस काम आएगी टेस्ट मैचेस में। तो मैंने कहा मेरे जो आइडियल हैं जिनको मैं बड़ा मानता हूँ, विकी भाई, उनका क्या होगा, क्या तो उन्हीं की जगह है। तो वो हुआ भी ऐसे। तो विकी भाई की जगह लॉक करके विकी भाई को मुझे खिलाया गया। अब पहला 1 लाख का क्राउड मैंने पहले दफा देखा। 1 लाख का क्राउड मैंने पहले बड़ा देखा था, लेकिन लाख का क्राउड ईडन गार्डन में, लाख का क्राउड बहुत क्राउड होता है। आप 200-300 लोग बैठे हुए हैं, राइट, 100-200 ही बैठे हैं, मल्टीप्लाई 100,000 पीपल। अब वो एक ही नाम लेते हैं, सचिन। वो लेना भी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम सचिन तेंदुलकर ही है। एज अ पाकिस्तानी मैं आज भी कह रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ, ओपनली कहता हूँ, तो बहुत बड़ा पाकिस्तान। और जब वो चेन्नई में टेस्ट मैच नहीं जिता सके, अनफॉर्चुनेट था, गुड लक टू पाकिस्तान थी कि हम सकलैन ने आउट किए। सकलैन तो खैर इतना अच्छी बॉलिंग कर रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो सकलैन ने 10 आउट किए, फिर 10 आउट कर दिए उसने, फिर अनिल कुंबले ने 10 आउट कर दिए। तो अब तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, तो सकलैन ने कहा यार सचिन को मैंने आउट करना है। सकलैन मुश्ताक ने कहा, मैंने कहा देख भाई अगर मैं खेलूँगा ना तो सचिन तो मेरा दोस्त है, मैं ही आउट करूँगा। तो कहते चल शर्त लगी। मैं कहा शर्त होगी। तो कहता देख ले, मैं पिछले मैचेस में मैन ऑफ द मैचेस बनाऊँ, इंडिया में बड़ा नाम चल रहा है सकलैन का, और सकलैन जैसा बड़ा स्पिनर दुनिया में नहीं आया। पर एनीवेज लंच हो गया। अब मैं वापस आया, बॉल स्विंग हो रहा था, तो ड्राविड को थोड़ा सा लेजी हुआ। वो बॉल ज़्यादा अच्छा था भाई, ड्राविड वाला बॉल सचिन वाले बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसी 1-2 हफ्ते पहले शाहिद अफरीदी, मैं शॉपिंग पे गए हुए थे, तो लोग बहुत शाहिद अफरीदी के पीछे आ रहे थे, तो मैं पीछे पीछे चल रहा था। उन्होंने कहा तू कौन है? इंडियंस है। मैं बड़ी जल्दी जान जाऊँगा तू, और फिर तो मुझे मेरा ही नाम याद रखा। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। एक आधा प्लेयर था, नाम लेता। 12 टेस्ट मैच शुरू हुआ, सचिन जो अंदर आए तो एक मुसीबत पड़ गई। सचिन 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 की आवाज़ें, 1 लाख बंदा एक ही नाम ले रहा है। मैंने कहा लो जी ये तो नया को तमाशा खड़ा हो गया। अब सचिन को मैं जो देखता हूँ, जो रीड कर रहा था उस वक्त, और वसीम भाई और मैं और सकलैन वो यही कह रहे छड़ी ना अल्लाह का वास्ते पहला बॉल विकेट खत्म करना, क्योंकि अगर सचिन खड़े हो गए ना तो वो फिर पूरा एक दिन पैदाएंगे, वो पूरा एक दिन खेलते हैं फिर। तो मैंने कहा जी ऐसे ही होगा। अब मैं मुड़ के वापस गया हूँ, सचिन तैयार नहीं हो रहे थे। आपने नेटफ्लिक्स में वो देखी ना हमारी डॉक्यूमेंट्री जो आई है, अगर आपने नेटफ्लिक्स में हमारी नहीं देखी, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, जो मैंने और ताहा ने प्रोड्यूस की है, मेरा मैनेजर बैठा हुआ साहब, तो हमने नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ प्रोड्यूस की हुई है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। उधर से सहवाग है, इधर से मैं हूँ, तो वो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो जब मुड़ा सचिन तैयार हो रहा था, तो मैंने कहा यार जल्दी कर ले भाई, मेरा मोमेंट ऑफ फेम आने वाला है, हरी अप। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस रखने के लिए, इसलिए ये कॉन्फिडेंस नहीं ज़रूरी है कि अगर आप ये कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे ना, तो सचिन तो ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन है ऑफ ऑल टाइम, आप उसको बीट कैसे करोगे? अगर आप उससे डर जाओगे, टिमिड हो जाओगे, या आप उसको महान जरूर मानिए, रिस्पेक्ट। मैंने दुनिया के हर बैट्समैन को अब्यूज किया, सिवाय एक बैट्समैन, पूछे कौन? सचिन। नहीं, ब्रायन लारा को तो मैं घर छोड़ के आया।
ब्रायन लारा को तो मैं रात से शुरू कर दिया था, मैंने तुम्हें खा जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा वाकई you gonna kill me? मैं क्या, of course I'm gonna knock you down। तो मैं रात से ही शुरू होता था। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं इसको। और प्लस मेरा रन अप, मेरा ओरा, मेरा बाल, खुला गला, ये सारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी था। एक्चुअली आई एम नॉट किडिंग, आई हैड टू क्रिएट दैट पर्सोना अबाउट मी कि मेरा इम्पैक्ट बैठे। तो मैं जब आ रहा हूँ, दूसरा कह रहा खुदा का वास्ता पता नहीं क्या हो रहा। रिमेंबर दिस, यू हैव टू क्रिएट अ पर्सनैलिटी आउट ऑफ यू। तो जब वो बॉल मैंने फेंका, हाथ से निकला, तो निकलते साथ मुझे पता लग गया था। वो सोहेल को भी पता है, सोहेल बॉलर, उसको पता है कि जब एक बॉल हाथ से निकलता है आपको एक लज्जत आना शुरू हो जाती है ज़ुबान के नीचे, एक टेस्ट आना शुरू हो जाता है आपको ज़ुबान के नीचे, आपके जिस्म के अंदर ना अजीब सी खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है जब बॉल, जब अच्छा रनअप हो, रिदम अच्छा हो, पाँव अच्छा गिर रहा हो। तो जो ही वो आउट हुए, यकीन मानिए एक ही बंदा चीखे मार रहा था ग्राउंड में। पूछे कौन? मैं। There was reason I asked this question कि मैं चाह रहा था कि मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े खूबसूरती से जवाब दिया कि जब तक आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, रिगार्डलेस कि आपके सामने कौन है, ओपोनेंट कौन है, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में इवन स्पोर्ट्स को छोड़ के, जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहाँ शुएब भाई पहुँचे हैं। और आई थिंक ये इनका बिलीव था अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, जो यहाँ पर बनाया। दोज टू डिलीवरीज एक्चुअली मैंने कहा कि डिफाइन किया इनके कैरियर को, तो वो उसके पीछे सारा मेथड यही था कि ही वाज, क्योंकि मैं इसलिए इस चीज़ का गवाह हूँ, ऑब्वियसली मैं इनसे छोटा हूँ, बट मैंने, क्योंकि मैं भी पिंडी से हूँ, मैंने पिंडी के जो डोमेस्टिक प्लेयर जो इनके साथ खेले। ऑफ माई बॉलिंग, विच इज़ के वसीम भाई ने कहा यार ये पुल तो करता नहीं सौरभ, सौरभ को आपने इधर ही बॉल मारना है, चेस्ट में, ठीक। जब उनको पहला बॉल लगा उनके रिब्स के नीचे नीचे, तो उनको सांस भी नहीं आ रही थी। बट जब वो शारजा में आए दोबारा, फिर उनको रिब्स में बॉल लगा, फिर दूसरी दफा लगा, फिर तीसरी दफा लगा, उसने कहा भाई विकेटें इधर नहीं लगी हुई, नीचे लगी। अगर आप कंपेयर करो ना इमरान खान ऑफ इंडिया, आई वुड से सौरभ गंगुली इज इमरान खान ऑफ इंडिया। यंगस्टर को वो लाया, सहवाग को उसने ओपनर बनाया, सचिन को सेटल किया और बाहर नहीं निकाला, रिस्पेक्ट दी। तो आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसने फेस किया मुझे, दैट इज द कमेंडेबल थिंग। एंड आई लाइक दैट पीपल दैट यू नो who actually show some guts, even they get hit by me many a times। और बाय द वे मेरी बॉल पे अगर 150 पे या 155 पे बॉल अगर लग जाए ना, तो भाईजान आपको पढ़नाना भी याद आ जाएगा। लिटरली आपको पिछली 6 नस्लें याद आ जाएंगी, ओ ये केड़े काम कर चल पे मैं, समझे मैंने। इट्स जस्ट रियली टफ, इट्स हार्ड, you just feel the pain for the rest of the year, it's not easy। So anyways, I think Saurabh is one of the fantastic guy। और अल्लाह करे यार हमारे हालात नेबरिंग कंट्री से जल्दी ठीक हों। वी आर वेरी प्राउड नेशन, और हम रेजिलिएंट भी हैं, तगड़े भी हैं, हम डटे भी हैं, और हम अच्छे भी हैं। और बस अल्लाह करे बस जल्दी से हालात ठीक हों, ताकि इकनॉमिक ट्रेड हमारी जो दुनिया की जो नीड है सब साउथ एशिया की, दैट नीड्स टू गेट गोइंग, ट्रस्ट मी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन यार पाकिस्तान वन ऑफ द फैंटास्टिक टैलेंट, जो आई थिंक ब्राज़ील ऑफ क्रिकेट से कहते हैं ना, ब्राज़ील ऑफ क्रिकेट, वो पाकिस्तानी है। आई मीन ऑड क्रिकेटर, ऑड एक्शन, बट वेरी सक्सेसफुल। हालांकि सोहेल का मेरे ख्याल में कोई टैलेंट बैटिंग में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, हालांकि एज अ कंप्लीट बैटर इसको अगर एक्सप्लोर किया जाता तो आई थिंक वुड हैव बीन मच बेटर। एंड बट यही है यार कि आई थिंक
किसी पे गुस्सा दिखाना या किसी को मारना, उसके पीछे लॉजिक होती है। तो लॉजिक ये थी कि उसको बैकफुट पे किया जाए और आउट किया जाए। ये चले अपना That's just the final question. Then, Yeah. Then audience can ask me any questions. Audience can ask. 2-3 questions, please. Okay. बताएं कि वो I know कि you wanted to be world fastest bowler from the beginning, from world go. But लोगों को भी बताएं कि क्या पहले दिन से when you started cricket आपको कब feel हुआ कि you can be that guy जिसको टैग लगेगा, आज तक तो लगा हुआ है, let's see, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर का, तो ये आपके दिमाग में बचपन से था? व्हेन यू रियलाइज कि आई कैन बी द वन हु विल बी टैग्ड एज अ वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर? इसी अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखते हो, नेशनल जियोग्राफिक देखते हो या डिस्कवरी चैनल देखते हो, इवन द प्रेडेटर्स विद द K9, जो भी बिग कैट्स हैं, they even learn to hunt. They even learn to hunt. Right? कैमोफ्लेज कैसे करना है, स्टॉक कैसे करना है, अटैक कैसे करना है, हैम्बुश कैसे करना है. रिमेंबर दिस, बड़ा क्लियरली मैं आपको, शायद आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ काम आ जाए कि अगर आपने अपना ब्रांड बनाना है एज अ ह्यूमन, आए, खाया पिया, शादी हुई, बच्चे हुए, अननोन मर गए, दैट्स फाइन विद मी. ठीक हो जाएगा, राइट? उसके अंदर की अगर आप साइंस पढ़ें तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसमें दवाई अल्लाह कौन सी रिलीज कराता है, वाइट सेल्स कैसे आते हैं, नाइट्रोजन कैसे रिलीज होती है, कैसे कैसा बैक्टीरिया लड़ के आपको ख़त्म करता है. और जब आपके ऊपर वो पीला सा निशान या पस का निशान बढ़ जाता है, वो आफ्टर मैच होता है बैक्टीरिया मरने से. वो मर के आपके ज़ख्म को ठीक करके, रिपेयर करके, ही सेक्रीफाइस. इमेजिन इफ ईच वन ऑफ यू, इमेजिन आपके, अब इमेजिन करना कि आपके दिमाग के जो सेल्स हैं वो पूरी गैलेक्सी से ज़्यादा है. आपके जिस्म की जो सेल्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, वो ग्लूटा गैलेक्सी से भी ज़्यादा है. अब मुझे ये बताओ कि इंसान की कैपेसिटी जब इतनी ज़्यादा हो और वो फिर इम्प्रूव ना कर सके, और वो फिर ही ऐसे सुबह उठा पराठा खा के, सालन रोटी खा के, बगैर कुछ की के सो गया और उसी तरह ज़िंदगी एंड कर दी, कसूर किसका है? अल्लाह ने तो तुम्हें कंप्लीट बना के भेजा है. आई रियलाइज्ड व्हेन कि मुझे लगा कि वसीम और वका यूनुस भाई के दरमियान रह के जगह नहीं बननी. इनसे पहले कई फास्ट बॉलर आए सोहेल, और कई अच्छे फास्ट बॉलर थे. एंड ये मैं कोई हम्बलनेस होकर नहीं कि बता रहा, ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ. मेरे से बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे और ये फैक्ट है. मेरे से बहुत अच्छे फास्ट बॉलर और बेटर एथलीट, बेटर एक्शंस and better control swings and everything. And I have probably better personalities. Probably. When it comes to personality, I would say no. My personality was a bit stronger. Personality क्या होती है? तो मैंने ये देखा कि अगर मैं ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बनना चाहूँ तो मेरे पास फिटनेस नहीं है. घुटने पहले ही टूट चुके थे, 96 में ही टूट गए थे, पार हो गए थे. कॉटलेज होता है, मेनिस्कस होता है, इसको पता है. वो 97 में मेनिस्कस ही सारा उड़ गया, दोनों को मेनिस्कस उड़ गया. कॉटलेज तो पहले ही उड़ गया था. तो उसके बाद 14 साल खेलना, वो सोहेल को पता है कैसे खेला जाता है. इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल. एनीवेज, अगर इन दोनों के दरमियान फास्ट बॉलर बनना तो क्या करना है? मैंने 3 चीज़ें की और आप ये मानोगे नहीं, और आपको पहले दफ़ा बता रहा हूँ. आई हैड टू रीब्रांड माई सेल्फ. रीब्रांड कैसे किया? मैंने कहा शर्ट खुली होनी चाहिए, बटन नीचे होने चाहिए, चेस्ट मेरी ब्रॉड है. रन अप मेरा था उस वक्त 32 यार्ड्स का, मैंने कहा उसको 38 यार्ड्स का होना चाहिए. 2 सेकंड और लगने चाहिए, 3 सेकंड और लगने चाहिए पहुंचने के लिए.
बाल कितने हैं? बाल छोटे हैं, बाल बड़े करो, ठीक है। और दूसरा, हालांकि जो मुझे जानता है, ये मुझे ऑफ स्क्रीन जानता है, बहुत सारे जानता है, मैं कभी भी नहीं लड़ता ऑफ स्क्रीन। मैं, मेरे जैसा इजी गोइंग बंदा, इससे पूछ लो, कोई भी नहीं। लेकिन ऑन द फील्ड क्या मत है। ऑन द फील्ड मैंने जब ये 3-4 चीजें की, अब मैंने क्राउड के बताया कि भाई साहब ये 2 भी हैं और मैं भी हूं। अब उसके बाद एक हर्डल रह गई थी, पूछे क्या हर्डल थी कि क्या ये मैच विनर है कि नहीं। जब तक आप मैच विनर नहीं बनोगे ना, या पूरा मैच नहीं जिताओगे, आप जो मर्जी कर लो, और जब आप कोई पटाखेदार परफॉर्मेंसेस नहीं दोगे ना, पटाखेदार मतलब है कि बस खैर नहीं सकते, वो परफॉर्मेंसेस जब तक आप नहीं दोगे ना, देन nobody is going to believe your aura, your brand or your personality, whatever it is. So I made sure कि यार I look the same, I look the way people like to see, or I like to see, or the way I want to present myself to other people, and what kind of aura people will enjoy it. Wasim bhai, greatest of all time. Waqar bhai, greatest of all time. ठीक, अब इनसे बड़े तो 2 क्रिकेटर पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आए, ठीक है ना। ये बहुत बड़े क्रिकेटर थे, सईद अनवर, इंजमाम, यूसरी, तो ये बड़े, इनसे बड़े क्रिकेटर को नहीं आए। अब जब इनका एक ग्रेटनेस आप टच नहीं कर सकते हो, एक की एबिलिटी टच नहीं कर सकते हो, तो एक हिस्सा रह गया था जो बाकी किसी लड़कों ने नहीं एक्सप्लोर किया। पूछे कौन कौन सा हिस्सा था? वो था टेरराइजिंग द बैट्समैन, बिकम अ टेयरवे फास्ट बॉलर। टेयरवे फास्ट बॉलर का मतलब ये होता है डराने वाला, ठीक है जी, कि जो आएगा, मारेगा, धाड़ेगा, ये इधर उधर, हार्ड उलट पलट हो जाएगी चीजें। एंड पीपल यूज्ड टू वेट फॉर माई स्पेल्स, ऐसे ही है ना, कि जब आया है आप कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही था ना। आई हैड टू क्रिएट दैट इन ऑर्डर टू मेक माई सेल्फ अ प्लेस बिटवीन 2 लेजेंड्स। जो बाकी लड़के थे, वो एक तो मैंने सोहेल की बातें बताई हुई हैं, वो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करते थे। देखिए आज मैं फिट लग रहा हूँ ना, पेट अंदर है, फिट लग रहा हूँ। अब आपको पता 10 मील पीछे लगे हुए इसके, आज सुबह से 10 मील लगा हुआ है इसके पीछे। मैं सुबह से बस सोफे पे हूँ, हिला नहीं जा रहा। मेहनत, अगर टैलेंटेड बंदे को मेहनत समझ आ गई, और अगर वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हुआ या गॉड्स फेवरेट ह्यूमन बीइंग हुआ, तो उसको दिया जाएगा। द ओनली थिंग दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड probably the successful one always present, either on the training session, either on the pitch when it comes to demanding a situation. मुझे कभी डर ही लगता था सिचुएशन से, ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, हार जाऊंगा, गिर जाऊंगा, that's all. But presenting yourself to the pressure, it makes you the real guy. जो कन्नी खा के निकलता है ना, या बचने की कोशिश करता है ना, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। बच के नहीं, किसी, मैं समझता था ग्राउंड एक स्टेज है, और स्टेज का लीड एक्टर मैं ही होना चाहिए, मुझे ही होना चाहिए। आई थिंक आई शुड बी एबल टू रन द शो। हालांकि आप सबको पता है कि जब मैं शुरू के मेरे इंटरव्यूज देखेंगे आप, तो मैं बोल भी नहीं सह सकता था, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता। आप प्लीज गो बैक एंड लुक एट इट। नो, आई एम नॉट किडिंग, नो, आई एम सीरियस। If you see, I used to stutter, I used to mumble. I used to could not convey my message. I had to learn, I had to practice, I had to go through every weakness that I had. I had to encounter that, and I had to confront that. So for me, to myself, to become a better human being. आज मुझे लाख बंदा खड़ा कर दें, आप जितने मर्जी खड़े कर लें, I will overpower your energies.
द रीजन वाई आई ट्रेन्ड माई सेल्फ लाइक दैट। आपने भी अपने आप से ट्रेंड करना है। कोई भी लिमिटेड आदमी पैदा नहीं हुआ, कोई भी लिमिट के अंदर नहीं पैदा हुआ, वो लिमिटलेस है। लिमिटलेस हद से तजावुज कर सकता है। आप हर इंडिविजुअल के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मर्जी आपकी, बाकी फैसला अल्लाह का होगा। देखिए, मैंने इमरान भाई के साथ बहुत लंबी जिंदगी गुजारी है, कभी 30 साल हो गए उनके साथ, लिटरली 95 से तो 2023 तक। उनकी एक क्वालिटी मैं तुम्हें बता दूं, वो जो मर्जी हो जाए वो टक्कर मारना नहीं छोड़ेंगे जब तक वो काम हो नहीं जाता। वो नहीं छोड़ेगा पीछा, वो बंदा पीछा नहीं छोड़ेगा। कैंसर हॉस्पिटल नो, क्रिकेटर नहीं बन सकता नो, अच्छा नमल नो, कुछ नो 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 नो। इतने स्टबन है, इतने स्टबन है, इतने स्टबन है कि आपकी सोच होगी। अब जब आप इतने स्टबन होते हो ना, जब आप इतने स्टबन होते हो, जब आपको इतना चाहिए होता है, उसमें सिर्फ एक फर्क आता है। एक चीज होनी चाहिए आप में, आपका अल्लाह पे ईमान, अल्लाह के रसूल पंजतन पाक पे ईमान ऐसे होना चाहिए, जमा हुआ होना चाहिए। मतलब हिले ना फेथ आपका, फेथ आपका अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और पंजतन पाक से हिले ना बस। अगर आपका फेथ नहीं हिला और आप मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, सही चीज करते रहे, मेहनत करते रहे, टकरे मारते रहे, यकीन जाने पूरी कायनात ना मजबूर हुई वो चीज देने में आपको। आप मुझे यहां से पकड़ लीजिए। तो नेवर टू लुक बैक, रिमेंबर दिस, डोंट लुक बैक, एनालाइज इट, एनालाइज द मिस्टेक्स, एनालाइज। हम सारे दिन में ना सारे ही गलतियां करते, मेरे समेत, रोज करते हैं। तुम्हारे में मुझे पता टोटल फर्क क्या होगा। मैं वो गलती एक्सेप्ट करके एनालिसिस में चल जाता हूँ, मैं गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पहले तो गलती एक्सेप्ट करने वाला बंदा ही बहुत बड़ा होता है, जो अपने आप को कन्फ्रंट कर लेता है। जो स्टबन आदमी होता है ना, वो कभी भी गलती मानते ही नहीं। सेल्फ एनालिसिस तभी आता है जब अपने आप को तुम गलत हो, and that you make so many mistakes in a day. This is what happens to each one of us, right? And especially the lie that we lie about ourselves. झूठ बहुत बोलते हैं अपने साथ। नहीं फिट हो, 5 मील भागोगे तो पता लगेगा। आज 500 मीटर वॉक करके देखो, पता चलेगा how unfit you are. Why you lying? गंदा खाना ना खाओ, तेल ना खाओ, मसाले ना खाओ, प्लीज ना खाओ। Good. That's under debate. That's very nice. अभी शौक खाने के लिए मैं आया हूँ। 1,80,000 पेशेंट कैंसर के आ रहे हैं। मुझे किस चीज़ की? रोटी खा रहे हैं? हाँ? किस चीज़ की? गट कैंसर। ये मेरी स्टडी नहीं है, शौक खाने की। प्राइमरी रीजन पता क्या है आपको? जी, मसाले। आपके मैदे, जी नहीं जी, कोई भी मसाला, मसाला इज द मेन रूट कॉज, और प्लस उसके ऊपर तेल, ये रूट कॉज हैं गट कैंसर के। ये शौकत खानम की अपनी स्टडी है। 1,80,000 कैंसर हॉस्पिटल्स में ये लोग आ रहे हैं एवरी ईयर। तो आप अंडी खा रहे हैं, मसला नहीं। लेकिन what I'm saying to you is, what I'm telling you is, improve your diet, please। अगर आपको आपकी हेल्थ डिमांड करे ना, तो then it's too late।
जब आपकी हेल्थ डिमांड करे, जब आपका वक्त से पहले आपकी हेल्थ डिमांड करे कि मैं ये नहीं खा सकता। हम सारों में से कितना पराठा नहीं खा सकते? बहुत सारे नहीं खा सकते, क्यों? हजम नहीं होगा। क्यों? कि उम्र, मेटाबॉलिज्म जो है इंसान का वो स्लो हो जाता है लेट 30s के बाद। तो आप प्लीज, मैं डाइट के ऊपर लेक्चर देनी है, मैं सिर्फ कहेंगे अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है? बट अगेन, to confront yourself, never to look back, and make sure that move on. Move on, move on. That's very simple thing. Canada has a very limited season. Canada has not enough facilities because most of our players usually play 75 to 80% of their games on the AstroTurf. Now, when we are going on the international platform, we have a lot of inexperience playing on the turf wicket. And when we go and face the bowler like you, batsman doesn't have to do anything, the ball will do the rest of the Nobody's things. like me now. Yeah. So, I was the last one. but in the senior cricket, we haven't seen it, but yes. So, we would like to know from you, because we are sending our Canadian team, our national coach for Kirmani is preparing, and they are really passionate about the tournament. What should we do when we go there in Karachi as a batter and as a bowler? It's very simple. Respect the situation which has been given to you, to play on the merit of the pitch, and to restrain, to restrict the batters when it comes to giving the runs. Because it's very easy to take runs there in Karachi. And secondly, but play on the merit. Jo ball aa rahi match mein, play on that. Very simple as that. So, back your abilities. Trust me, anybody nowadays can hit a ball, can create chances to win and hit a ball and say they can win matches. Just believe in the abilities and play on the merit. And that's what I'm going to say. But what I'm saying is, the biggest crime in the society, मैंने जो history पढ़ी है, medievals की पढ़ी है, मैंने medievals के से लेके Christianity और मुस्लिम उम्मा तक से लेके यहाँ तक जो पढ़ी है, जब आप incompetent बंदे को ना बड़ी जॉब पे बिठा दो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो माशाल्लाह 1, 2 साल, 10 साल में पूरी इंडस्ट्री तबाह कर देगा। जब मीडियोकर बंदा ऊपर आएगा ना, पता एक काम करेगा, अपने साथ एवरेज लोग लगाएगा। एवरेज लोग क्या करेंगे? वो किसी टैलेंटेड बंदे को आगे आने से रोक देंगे, सिंपल एज दैट। और वो अपनी 5-10 लाख रुपए की नौकरी जाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। Biggest crime in my years to bring a mediocre guy into the highest level and put him in a good office. Thank you very much.